about the past paper practice of English Pressy. So what I've done is I've taken out a past paper from one of the CSS old exams और मैंने किया क्या है कि उसको पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया ताकि सेपरेटली तो मैंने सेक्शंस अपनी डिफरेंट वीडियोस में सॉल्व किए हुए हैं बट आई डेंट वांट यू गाइस टू थिंक कि जी बिल्कुल ऐसा कोई पेपर नहीं है जो बिल्कुल सॉल्व नहीं किया और शायद इफ़ यू डू एवरीथिंग टुगेदर देन इट्स गोइंग टू बी मोर हार्ड. तो ये सारी एक्सरसाइज करने का पॉइंट यही है इन द एंड कि आपकी जो घबराहट है, जो प्रेसी के बारे में जो टेंशन है, जो डर है, जो मुझे खौफनाक सुसाइडल मैसेजेस आते हैं कि जी मुझसे नहीं होगा, तो ये जो डर है आपका वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म हो जाए. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, इट्स अ वेरी इजी थिंग बट वी डोंट वांट टू टेक इट स्टेप बाय स्टेप. वी डोंट वांट टू डू इट द वे FPSC वांट्स अस टू डू इट. ठीक है, हमने अपनी चीज़ें ऐड करनी होती हैं विच इज़ वाई वी टेंड टू लूज मार्क्स. सो लेट्स बिगिन. अच्छा जी, ये आपका 2017 का है. अगेन वन ऑफ माई फेवरेट प्रॉबेबली पेपर्स. अच्छा जी, अब देख लेते हैं. इस तरह का आपको आ जाएगा, प्रेसी आ जाएगी. ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियर इतना नहीं है तो आप अपना भी निकाल सकते हैं 2017 का और यू कैन रेफर टू द नेक्स्ट स्लाइड जिसमें मैंने इसको ब्रेक डाउन किया हुआ है कॉपी पेस्ट करके. अच्छा, वो कहता है कि इट इज़ इन द टेम्परेट कंट्रीज ऑफ नॉर्दर्न यूरोप दैट द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड आर मोस्ट मैनिफेस्ट. वेरी इजी कि जो टेम्परेट कंट्रीज होते हैं उनमें जो अच्छे या कॉन्सिक्वेंसेस या अच्छी जो चीज़ें हैं, फ़ायदे हैं कोल्ड के, देर सबसे ज़्यादा तब नज़र आते हैं. अ कोल्ड क्लाइमेट सीम्स टू स्टिमुलेट एनर्जी बाय एक्टिंग एज एन ऑब्स्टिकल. In the face of an insuperable obstacle, our energies are numbed by despair. The total absence of obstacles, on the other hand, leaves no room for the exercise and training of energy, but a struggle against difficulties that we have a fair hope of overcoming calls into active operation of all our powers. ऐसा ही है, all our powers. ठीक है. In like manner, while intense cold numbs human energies, ठीक है, अगेन वेरी इजी. एवरीथिंग टू स्टार्ट से अभी तक इज वेरी वेरी सिंपल. सेमीकोलन से घबराना नहीं है कि वो लंबा सेंटेंस को कर रहा है, वो बातें बहुत सिंपल कर रहा है. मैं आगे आपको बताती हूँ. इन लाइक मैनर वाइल इंटेंस कोल्ड नम्स ह्यूमन एनर्जीज एंड अ हॉट क्लाइमेट अफोर्ड्स लिटिल मोटिव फॉर एक्सर्शन, moderate cold seems to have a bracing effect on the human race. So basically he's opting for, is going for moderate cold, ठीक है, not extreme weathers. In a moderately cold climate, man is engaged in arduous but no hopeless struggles, and with the inclemency of the weather, he has to build strong houses and procure thick clothes to keep himself warm. So basically वो काम करता है in moderately cold weather. इंसान to supply fuel for his fires, he must hew down trees and dig coal out of the earth. In the open air, unless he moves quickly, he will suffer pain from the biting wind. Finally, in order to replenish the expenditure of bodily tissue caused by his necessary exertions, he has to procure for himself plenty of nourishing food. Quite different is a lot of man in the tropics. अब वो completely shift करके tropics पे चल रहा है. In the neighborhood of the equator, बहुत कम need होती है of clothes of fire, and it is possible with perfect comfort and no danger to health to pass the livelong day stretched out on the bare ground beneath the shade of a tree. A very little fruit or vegetable is required to sustain life under such circumstances, and that little can be obtained without much exertion from a bounteous earth. We must recognize the same difference between ourselves at different seasons of the year as there is between human nature in the tropics and in the temperate climates. In hot weather, we are generally inclined to take life easy, but when the cold season comes, we find that we're more inclined to vigorous exertion of our minds and bodies. I'm sorry, I think there are a little bit of errors in this. अच्छा जी, या थोड़े बहुत एरर्स हैं बट कोई बात नहीं, विल जस्ट मूव ऑन. अच्छा जी, अब जो है हम उसकी प्रेसी करते हैं. अच्छा, अब ये जो पॉइंट्स हैं मैंने जॉट डाउन किए हैं, मैंने निकाले हुए हैं जस्ट सो यू कैन हैव एन आइडिया कि किस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालना है. लेकिन अब किया क्या मैंने कि पहला जो हिस्सा आपका है स्टेटमेंट है, इट इज इन द टेम्परेट कंट्रीज ऑफ नॉर्दर्न यूरोप दैट द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड आर मोस्ट मैनिफेस्ट. दिस इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्चुअल पैसेज एज वेल. अब ये एज इट इज है, जब मैंने प्रेसी करनी है तो मैंने इस लाइन को, मुझे समझ आ गई कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है. ठीक हो गया. अब इसी लाइन को आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू अ सिंपलर लाइन विच इज बेनिफिट्स ऑफ कोल्ड आर मोस्ट विजिबल इन नॉर्दर्न यूरोप. बात दोनों एक ही कर रहे हैं मगर ये सेंटेंस मेरे लिए छोटा है, मेरे वर्ड्स कम यूज हो रहे हैं और वो जो इंपॉर्टेंस है उस सेंटेंस की वो भी ग्रास्प हो जाती है. ठीक हो गया. सिमिलरली दूसरा सेंटेंस, कोल्ड क्लाइमेट सीम्स टू स्टिमुलेट एनर्जी बाय एक्टिंग एज एन ऑब्स्टिकल. इसी को मैं इसके साथ ज्वाइन कर दूंगी, where cold acts as a stimulant by acting as an obstacle. ठीक हो गया. अगेन मेरे वर्ड्स कम हो गए लेकिन बात कह दी गई.
अब ये जो है ये सारे चेंज्ड सेंटेंसेस हैं, ये जिस तरह ये चेंज सेंटेंस है ना, इस तरह ये सारे चेंज सेंटेंसेस हैं, मैंने ओरिजिनल वाला सेंटेंस पे नहीं लिखा। ये दोनों मैं इसलिए ओरिजिनल पहले लिखा है फिर चेंज लिखा है, ताकि आपको समझ आ जाए कि ओरिजिनल को आपने चेंज में किस तरीके से थोड़ा बहुत मनूवर करना है। फिर वो बात करते हैं कि एब्सेंस ऑफ हर्डल्स मेक्स लाइफ इजी टू लिव, जबकि इसलिए आप काम नहीं करते जब आपके पास कोई हर्डल या ऑब्स्टिकल ही नहीं होता। वेयर एज प्रॉब्लम्स इनकरेज मेन टू वर्क। वेरी सिंपल लैंग्वेज, कोई मैंने ऊपर से बात नहीं की, कोई डिफिकल्ट बात नहीं हुई, ठीक है। इसमें एक नॉर्मल से मैंने सेंटेंस को जो ओरिजिनल पैसेज के अंदर होगा उसको मैंने अपनी तौर तरीके से मैंने चेंज कर दिया, ठीक हो गया। The total absence of obstacles leaves no room for the exercise and training of energy, but a struggle against difficulty that we have a fair hope of overcoming. ठीक हो गया। अच्छा excuse me. फिर similarly weather has effects where harsh weather suppress man's ability to work and hot weathers reduce the incentive to work. ठीक है, अगेन वो यही बात कर रहा है। While intense cold numbs human energies, hot climate affords little motive for exertion. इसको मैंने चेंज करके क्या कर दिया, weather has effects where harsh weathers, extreme weathers suppress man's ability to work. बहुत ठंडा होगा तो, और and hot weathers reduces incentive to work, क्योंकि सब कुछ आपके पास प्लेट में तैयार होता है, ठीक है। उसके बाद mild cold however restores man's energy to work. During mild colds residents are involved in laborious tasks arranging warm houses, food and fuel, ठीक है। अब इतने लंबे सेंटेंस को he has to build strong houses and procure thick clothes to keep himself warm, to supply fuel for his fires, he must do this and this and this. अभी काफी लंबा सेंटेंस है, इसको मैंने बहुत छोटा कर दिया कि ड्यूरिंग माइल्ड कोल्ड्स रेजिडेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन लेबोरियस टास्क और डिफरेंट टास्क और हार्ड वर्किंग टास्क और क्या कहते हैं डिफिकल्ट टास्क कर लो आप, चलो। अरेंजिंग वार्म हाउसेस, फूड एंड फ्यूल, दे मूव ब्रिस्कली टू कीप देमसेल्व्स वार्म विद नरिशिंग मील्स टू हेल्प देम डू दैट। लाइफ अराउंड द इक्वेटर रिक्वायर्स लेसर क्लोथ्स विद द होल डे स्पेंट अंडर ट्रीज विद लेस फूड। अब आ गया इसके ऊपर, ट्रॉपिक्स के ऊपर, कि इक्वेटर के ऊपर इस सेंटेंस को फिर आपने चेंज किया कि लाइफ अराउंड द ट्रॉपिक्स इक्वेटर रिक्वायर्स लेसर क्लोथ्स विद द होल डे स्पेंट अंडर द ट्री विद लेस फूड। इन द सेम वे, अभी लास्ट पैराग्राफ, कि लाइफ पैटर्न्स इसी तरह चेंज होते हैं एज पर सीजनल चेंजेस। इन समर्स लाइफ इज lethargic, whereas in winters it is more active and energetic. These are only 10 sentences that make up your entire Pressy, और आपका जो पूरा का पूरा आइडिया है प्रेसी का वो ग्रास्प कर लिया उसने। नाउ हाउ डिफिकल्ट वाज दैट? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, किन किन पॉइंट्स को मैंने चेंज करना है, देन यू कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर सेंटेंसेस एंड शॉर्टर सेंटेंसेस एंड देयर गोज योर प्रेसी। ठीक हो गया? अच्छा, ये बस बेसिकली अगेन आई थिंक आई टुक इट फ्रॉम द इंटरनेट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ किस तरह आप लिख सकते हैं। टाइटल आप कर सकते हैं इफेक्ट्स ऑफ वेदर चेंजेस ऑन ह्यूमन लाइफ, और वो मेरा किया हुआ है ये लेट्स से आप किसी और का किया हुआ है, तो आप ये भी देख लें, एक बार पढ़ लीजिएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड प्रेसी। ठीक है, अच्छा फिर आगे आपका कॉम्प्रिहेंशन। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये मुझे पढ़ना पड़ेगा लाजमी। ठीक है, अब देखते हैं। द थर्ड ग्रेट इफेक्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज दैट इट डज नॉट नो व्हाट टू डू विद इट्स नॉलेज। Science has given us powers fit for the gods, yet we use them like small children. For example, we do not know how to manage our machines. ठीक है, आपको समझ आ गई, it's about machines in general. Machines are made to be man's servants, yet he has grown so dependent on them that they are in a fair way to become his master. Already most men spend their most of their lives looking after and waiting upon machines, and the machines are very stern masters. They must be fed with coal, या कह लो कि उसके बाद एंड गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक एंड ऑयल टू वॉश विद, एंड दे मस्ट बी केप्ट एट द राइट टेम्परेचर, एंड इफ दे डू नॉट गेट देयर मील्स व्हेन दे एक्सपेक्ट देम, दे ग्रो सल्की एंड दे रिफ्यूज टू वर्क, और दे बर्स्ट विद रेज एंड ब्लो अप एंड स्प्रेड रूइन एंड डिस्ट्रक्शन ऑल अराउंड देम। ठीक हो गया? उसके बाद सो वी हैव टू वेट अपॉन देम वेरी अटेंटिवली एंड डू ऑल दैट वी कैन टू कीप देम इन अ गुड टेम्पर. Already we find it difficult either to work or play without the machines, and a time may come when they will rule us altogether, just as we rule the animals. ठीक हो गया? And this brings me to the point at which I asked, what do we do with all the time which the machines have saved for us and the new energy that they have given us? On the whole, it must be admitted we do very little. For the most part, we use our time and energy to make more and better machines, but more and better machines will only give us still more time and still more energy. And what do we do with them? ठीक हो गया? जितना भी टाइम वो आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जो आपके पास फ्री होता है, बिकॉज दे हैव रिड्यूस द टास्क टाइम, और इफ दे हैव रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ लॉट ऑफ योर वर्क, तो वो फिर आप उस टाइम का क्या करोगे?
The answer, I think, is that we should try to become more civilized. For the machines themselves and the power which the machines have given us are not civilization but aids to civilization. But you will remember that we agreed at the beginning that being civilized meant making and linking beautiful things. Thinking freely and living rightly and maintaining justice equally between man and man. ठीक है, civilized का ये मतलब है. Man has a better chance today to do these things than he has ever had before. Because क्योंकि उसके पास ज़्यादा time है, more energy, less to fear and less to fight against. If he will give his time and energy, which his machines have won for him, to making more beautiful things, to finding out more and more about the universe, to removing the causes of quarrels between nations, to discovering how to prevent poverty, then I think our civilization would undoubtedly be the greater, as it would be the most lasting that there has ever been. So this is your whole passage. अब आपके आगे सवाल. Instead of making machines our servants, the author says they have become our masters. In what sense has this come about? अब वो कहता है कि machines have become our masters क्योंकि आदमी अब मशीन का ख्याल रख रहा है, और उसने यहाँ पे लिखा भी हुआ है. If you machines were made to be man's servants, yet he has grown so dependent on them that they are in a fair way becoming his master. Because already most men spend most of their lives looking after and waiting upon machines. ठीक है, ये. The use of machines has, question 2, the use of machines has brought us more leisure and more energy. लेकिन वो कर्स क्यों है rather than a blessing? ठीक है, again, आप rather begin machines are vain because they consume the time of man which should be spent on nature. ठीक है, तो आपने ये कहना है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम होता है वो आपका कंज्यूम हो जाता है बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग केयर ऑफ द मशीन्स एंड दे रिक्वायर अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज जो मशीन्स इस तरह के मास्टर्स हैं दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, दे वांट उनका ख्याल भी रखा जाए, ठीक भी किया जाए उनको, ये वो, और पूरे इस लेबोरियस टास्क में, सारे प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है. ठीक हो गया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन? डू यू अग्री विद द ऑथर्स व्यूज? ठीक है, और ऑथर ने क्या कहा सिविलाइजेशन का? ये सिविलाइज का मतलब क्या है? मेकिंग एंड लिंकिंग ब्यूटीफुल थिंग्स, थिंकिंग फ्रीली, लिविंग राइटली, मेंटेनिंग जस्टिस, जितनी भी चीजें उस वक्त मैंने अंडरलाइन की थी. ठीक है, वो आपकी सिविलाइजेशन के क्वेश्चन में आ जाएंगी अकॉर्डिंग टू द ऑथर. ऑब्वियसली थोड़ी सी आपने शेप भी देनी है अपने सवाल को. यू कांट जस्ट कॉपी एंड पेस्ट. दिस इज विच इज व्हाई आई हैव दीज आंसर्स विद मी, ताकि थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए कि जी मैंने किस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करनी है. According to the author, civilization means shaping and connecting refined phenomena in civilized living. There is freedom of living, living in equal access to justice. And if you agree with the author, तो फिर आप बताओगे आप क्यों agree करते हैं. ठीक है. Making and more beautiful things. What does this expression mean? Make a list of beautiful things that you would like to make and how you would make them. Author का क्या मतलब था कि जी making more beautiful things as having equal access to opportunities, exploring the universe, eradicating poverty, causes or disputes between people. ये ऑथर का काम था. ठीक है, ऑथर ने कहाँ पे बताया आपको? ठीक है, मेकिंग मोर ब्यूटीफुल थिंग्स ताकि आप यूनिवर्स के बारे में जानो, यू रिमूव कॉजेज ऑफ क्वारल्स बिटवीन नेशंस, आप पॉवर्टी को प्रिवेंट करो. ठीक है, ये चीजें ऑथर ने आपको बताई थी, लेकिन सवाल ये कह रहे हैं कि क्या मतलब था उसका. एंड देन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू मेक एंड हाउ वुड यू मेक दैम. तो अब आप बताते हो अपनी कि पॉवर्टी एराडिकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन, equitable resource distribution, these are things that you would want to make. These are beautiful things that you believe in. ठीक है. Mention some plans you may have to prevent poverty in the world. Again, this is a very subjective question. इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, और इस तरह के सवाल है तो अल्लाह का शुक्र किया करें because they really want to know your point of view. तो इसमें आप जरा अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं. Who would receive your most particular attention? ठीक है, यूनिवर्सल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, these are just some of the examples जो आप लिख सकते हो. और आप कह दो एजुकेशन जो है it would receive more attention. ठीक है, this is a bigger problem, this is a problem the world needs to tackle right now. ठीक है, कुछ भी आप अपनी तौर पे बता सकते हैं. So in this question you have the liberty to write whatever you want. ठीक है, I hope this session was useful for you. In the next session we're going to continue with this past paper, but now that we're done with Pressy and comprehension, we're going to move on to the other